So, sir, matlab, before I would we would definitely like to go into your life journey. But usse pehle, would like to get some clarity on a few terms, which is big part of your life, right? So let's start with the acronym FIRE, right? Sir, क्या है ये FIRE? इसके बारे में बताइए सर. See, the idea is कि आज की डेट, अच्छा, just one thing, the conversation should remain English heavy, Hindi heavy, English, क्या? English. English. कुछ भी चलेगा सर. English. Okay. So, FIRE का basic idea or the basic concept comes from कि हम लोग पैसे के लिए हमेशा एक नौकरी के ऊपर, एक इनकम सोर्स के ऊपर, एक बिजनेस के ऊपर, एक दुकान के ऊपर, एक सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और उस वजह से हमको काम करना पड़ता है. सो व्हाटएवर वी आर डूइंग, a lot of times we are doing it to get money from our employer, from our customers, from our clients, or whatever. Now imagine that you didn't need to do that. Imagine that you have built a portfolio कि अब तुमको काम करने की जरूरत नहीं है. So you have become independent from financial worries. That essentially is the first couple of letters of FIRE, FIRE. This is the financial independence part कि आपके पास में इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है. The other part of it, which is the RE part of it, that is the retire early part. कि अब मान लो मेरे पास में इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है. वो तो हो गया FI पार्ट. बट अब तुम सोच लो कि नहीं भैया, जरूरत है या नहीं है, मैं तो रिटायर कर रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं 45 का हूं, मैं 55 का हूं, मैं 60 का हूं, मेरे देश में क्या रिटायरमेंट एज है, उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए मेरे पास में पैसा है तो अब मैं रिटायर कर रहा हूं. सो वंस यू एक्चुअली रिटायर बिफोर द स्टैंडर्ड नॉर्म्स, जो कि इंडिया में 60 साल के पहले है, तो सपोज यू आर रिटायरिंग एट 58 और यू आर रिटायरिंग एट 38, in both cases you are retiring early. So that is the RE part of it, and that essentially gives us the acronym FIRE. Right, that's correct. Okay. As you mentioned, sir, कि दो major part है इसके, the acronym. It's financial independence and then retire early. ठीक है, financial independence. I think on a very general case, everyone would want to be financially independent as soon as possible. ठीक है, जहाँ पे उन्हें एक्टिव इनकम सोर्स की जरूरत ना पड़े टू survive, right? Not dependent on any work. But if we come to the later part, retire early, right? So what sort of now retire early again, इसकी दो चीजें हैं कि एक तो होगा कि आपको कुछ काम नहीं करना है. So what would that constitute of actually the retire early part? Is it कि नहीं, मेरे को अभी कुछ भी काम नहीं करना है, या फिर अब even if I do what I like to do, even if it takes 8 hours a day, if I do that for 10 hours a day, but it is something that I like to do, would even that be considered as retiring early? कि अब भाई मेरे को भली पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, बट ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर रहा हूँ. So that distinction essentially depends upon कि वो तुम्हारे लिए कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहा है. So suppose कि तुम्हारा महीने भर का खर्चा जो है वो 1 लाख रुपया है. As long as उसमें से 90,000 रुपया या 95,000 या 85,000 रुपीस तुम अपने कॉर्पस से ले रहे हो, कॉर्पस के रिटर्न से ले रहे हो, then I think you can call yourself from the retired early part because you are not reliant on the income that you are generating. But अब तुम बाद में जो कुछ काम कर रहे हो उससे अगर एक सब्सटैंशियल पैसा आ रहा है, maybe 25% of your requirement or 100% of your requirement, जो तुम्हारे खर्चे हैं वो उससे आ रहे हैं, तब उसको रिटायर अर्ली बोलना उचित नहीं होगा. और ये तो बोलने की बात है, बोलने से ज्यादा तुम्हारी जो कैलकुलेशंस हैं उनको तुम्हें उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दे विल टेल यू हाउ मच मनी डू यू नीड. तुम्हारे अगर लाख रुपए के खर्चे हैं और तुम ये अज्यूम करते हो कि भैया मैं तो एक भी पैसा नहीं कमाऊंगा आफ्टर आई रिटायर अर्ली, then you will need a much larger amount versus if you decide कि चलो ठीक है, even after leaving my stressful heavy job, मैं पार्ट टाइम कंसल्टिंग कर लूंगा,
मैं पार्ट टाइम कंसल्टिंग के अंदर 10,000 15,000 रुपए कमा लूंगा. The amount of money that you would need is going to be very very different in both cases. और तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस उसके ऊपर डिसाइड होंगे. तुमको कितना पैसा चाहिए वो उसके ऊपर डिसाइड होगा कि तुम्हारा कैश फ्लो आफ्टर रिटायरमेंट कितना है. सो what term to give it is not very important कि तुम उसको रिटायर अर्ली बोलोगे या नहीं बोलोगे. I don't really think that makes that much of a difference. But you need to account for that when you are making your investment decisions and mathematical calculation कि क्या मैं रिटायर करने के बाद में कुछ भी कैश फ्लो जनरेट करूंगा या नहीं करूंगा. ये आपको पहले पता होना चाहिए. And I think that would do the trick. Okay, okay. So, actually that would bring us to your life journey. कि आप इस फायर वाले फेज में आप पहुंचे कैसे? What was your mindset? What were you doing before that? If you could just give us some sense of how has your journey been till now, it would be great. तो मतलब शुरुआत कहाँ से कर लिया उसकी बात है. जब मैं 5वीं में था सर कॉलेज से क्योंकि जनरली वही है, कॉलेज के बाद सब नौकरी के लिए भागते हैं सर. है ना, तो वही से स्टार्ट करते हैं सर. आप or wherever you feel like starting from. Okay, so essentially I think a good starting point for it would be 2012. 2012 में मैं एक स्टार्टअप माइंडटिकल करके है, वहां पे मैं काम कर रहा था. उसके पहले मेरे 5-6 साल का मेरे पास में एक्सपीरियंस था. बट जो मेरा 5-6 साल का उसके पहले का एक्सपीरियंस था उसमें मैंने कभी बहुत ज्यादा पैसा कमाया नहीं था. बहुत ज्यादा मेरी सेविंग्स नहीं थी. थोड़ी बहुत थी. उनसे मेरे को इक्विटी में पैसा डालना चाहिए, ये सारी चीजें मेरे को बेसिक समझ में आते थे. बट 20,000 रुपए का पोर्टफोलियो लेके आदमी क्या ही कर लेगा वाला सिचुएशन हो जाता है. So 2012 is when I started making a decent amount of money in a company called Mindtickle. और उसके बाद में मैंने अपना बिजनेस चालू किया. और बिजनेस को 1-2 साल लगे स्टैब्लिश होने में. और once the business got established, I was making a lot more money. और मैं ज्यादा पैसा कमा रहा था तो मैं ज्यादा पैसा बचा भी रहा था. ज्यादा पैसा बचा रहा था तो ज्यादा पैसा मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर भी रहा था. और ये चलता रहा 2018-19 तक. I made a pretty decent amount of money. फिर मेरा बिजनेस जो था वो थोड़ा गिरने लग गया बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस. और 2020-2021 तक आते आते मेरा बिजनेस थोड़ा बहुत नीचे आ गया था. तो ऐसा तो नहीं था कि बंद हो जाएगा या प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे. बिजनेसेस, ट्रेडिशनल बिजनेसेस जहाँ पे प्रॉफिट पे फोकस है, दे डोंट डाई डाउन वेरी मच. बट ये नजर आ गया था मेरे को कि अच्छा भैया ये कहानी चलती रही तो वो 2-3 साल में उसका प्रॉफिट इतना कम रह जाएगा कि कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा उसको चलाने का. हो सकता है लॉस में भी चला जाए अगर कंपटीशन और बढ़ जाता है तो. फिर मैंने सोचा दी प्रॉपर वे टू डू दिस वुड बी कि अच्छा हाँ, लेट मी सेल दिस बिजनेस टू अनदर कंपनी, get some sort of cash flow in one go, and that would be a good way for me to exit the business. So फिर मेरी कंपनी को मैंने बेचा, which was acquired by a $1 billion company, a unicorn company, and I worked with them for a couple of years उसके बाद में. और क्योंकि जब आपकी कंपनी अक्वायर होती है तो उसके साथ में कुछ कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि यू विल नीड टू वर्क फॉर दिस मच पीरियड, ब्ला 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 ब्ला. तो वो मैंने उनके साथ में 2 साल, आई थिंक 2 साल के आसपास मैंने उनके साथ में काम किया. और उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ भाई. या तो मैं कोई और नौकरी ज्वाइन कर लूँ, या मैं कोई और बिजनेस ज्वाइन कर लूँ, या मैं कुछ भी नहीं करूँ. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे और अभी के टाइम पे भी पिछले 2 साल से मैं वो कुछ भी नहीं कर रहा वाली कैटेगरी में हूँ. ना तो मेरी नौकरी करने की श्रद्धा बची है, ना मेरी धंधा करने की श्रद्धा बची है. आराम से जो है कहानी चल रही है. सो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ. इस बात को भी अब 2 साल होने को आ गए हैं. सो आई रिटायर्ड अर्ली इन जुलाई 22. Okay, in July 22. And when was this podcast thing, the Desi Fire podcast? ये आपके दिमाग में भी कैसे और कब स्टार्ट किया आपने? So मेरा जो फायर जर्नी थी, ये जो अर्ली रिटायरमेंट का था, इसके बारे में मैंने पहली बार पढ़ना 2018 के अंदर चालू किया. मेरे को ये टर्म पता लगी क्या होता है एंड हाउ यू कैन प्लान योर फाइनेंसेस अराउंड दैट.
उसके पहले से भी मेरी ये टेंडेंसी तो हमेशा से थी, और ये एक आलसपन तो हमेशा से ही था कि भाई काम नहीं करना पड़े, पैसे आते रहें, तो उससे बढ़िया क्या जिंदगी हो सकती है। और आई आई थिंक मैंने एक किताब लिखी थी, उसके पीछे भी थोड़ा मोटिवेशन यही था कि एक बार किताब लिखते रहते हैं, फिर इसकी रॉयल्टी आती रहेगी। वो तो बाद में समझ में हाँ, आया कि किताब के अंदर रॉयल्टी वगैरह कितनी आती है, कुछ नहीं होने वाला है उससे किताब लिख के। अच्छा, ओके। इसीलिए दिस वाज वन ऑफ द रीजंस दैट आई स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन। मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाना चालू किए थे 2008 में। तो वो 2008 में तो कोई यूट्यूब पे वीडियोस बना के, मतलब वेरी फ्यू पीपल आई नो यूज्ड टू डू इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तब भी की इंटेंशन ये था कि अच्छा हाँ, यहाँ से एक बार वीडियो बना के डाल देते हैं, फिर पैसा जिंदगी भर आता हाँ, रहेगा। वो तो फिर बाद में समझ आता है कि इससे कोई पैसा आता नहीं है। हाँ, But this sort of tendency of running away from work and getting easy money was always there in the head somewhere. And around 2018 2019 when I started learning more about investments, क्योंकि तब तक मेरे पैसे इकट्ठे हो रहे थे, कॉर्पस भी अच्छा खासा बन रहा था, और मैं कोई बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि सोच विचार के इन्वेस्टमेंट्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं कर रहा था, बहुत मेथोडोलॉजिकल नहीं था। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग मोर अबाउट इट इन 18-19। तब मेरे को फायर के बारे में पता पड़ा, और देन आई स्टार्टेड मेकिंग माय इन्वेस्टमेंट जर्नी अकॉर्डिंगली। और इस जर्नी के अंदर मेरे को यूट्यूब से बहुत हेल्प मिली, बिकॉज फायर ओके, मूवमेंट के बारे में बात करने वाले यूट्यूब के ऊपर यूएस में बहुत सारे लोग थे। जैसे एक बहुत ही बढ़िया चैनल मेरे को मिल लगता था, गेट टू साइड्स ऑफ फाइव करके है। उसमें दो दोस्त हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक रिटायर कर चुका है, एक रिटायर करने वाला है। सो दे आर टू अच्छा, साइड्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वहां से मेरे को हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरे को लगा यार ये लोग बात तो बढ़िया कर रहे हैं। फिर उसके बाद में मैंने और कुछ कुछ यूट्यूब चैनल्स देखे जहां पे कि वो लोग एफआई की बात करते थे, फायर की बात करते थे, बट वो लोग बात करते थे कि अच्छा हाँ 401k में इतना होना चाहिए, रॉथ आईआरए में इतना होना चाहिए, वीटी सैक्स उठा लो। So these are all terms which were for the global US based audience. राइट, इंडियन ऑडियंस के लिए क्या है? कुछ नहीं है। अब होने लग गया है। तो तब मैंने फिर वो इंडियन ऑडियंस के लिए फायर रिलेटेड कंटेंट मेरे को लगा यार बनाते हैं। इट माइट हेल्प someone like someone else's content help me. So that हाँ, was the key idea behind starting the channel. So it was कब around, था? हाँ, मतलब आई थिंक मैंने छोड़ा है जुलाई 22 में, एंड अर्ली 2023 के अंदर मैंने शायद ये चैनल अपना शुरू कर दिया था। आई थिंक द फर्स्ट वीडियो वाज आउट इन मे बी फेब मार्च 2023। ओके। तो कुछ आपको ऐसे रिस्पॉन्सेस मिले हैं फ्रॉम योर व्यूअर्स की मैंने सर आपकी वीडियोस से देख देख के आई हैव अचीव्ड फायर और समथिंग लाइक दैट? नहीं, अचीव वाला तो कोई नहीं मिला है, बट हैज हैपेंड कि अच्छा हाँ, मैं सीरियसली इसके बारे में प्लान करना मैंने चालू कर दिया है। आई एम इन्वेस्टिंग विद दैट सॉर्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी कि मेरे को फायर होना है। वैसे काफी लोग मिले हैं। हाँ, कुछ कुछ ऐसे लोग मिले हैं मेरे को जिनके पास में दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं था, उनको भरोसा ही नहीं होता था कि अच्छा हाँ, क्या मेरे पास में जो पैसा है वो काफी है या नहीं है। फिर भी वो लोग जो है खर्चा नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट बाइंग द सॉर्ट ऑफ कार्स दैट दे वांट, और दे आर नॉट टेकिंग द सॉर्ट ऑफ हॉलीडेज दैट दे कैन अफोर्ड टू टेक, क्योंकि उनको लगता है नहीं यार पैसा कमाओ, पैसा और कमाओ और कमाओ, और उसके पीछे भागते रहते थे। मुझसे बात करके, चैनल देख के, लोगों की सुन के, जो मैं इंटरव्यूज वगैरह लेता रहता हूँ, सो दे हैव बिकम कॉन्फिडेंट कि अच्छा हाँ यार मेरे पास में है, तो मैं थोड़ा भी आसानी से चिल मार सकता हूँ। वैसे मेरे को कई लोग मिले हैं जो कि आके बोलते हैं कि अच्छा हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने कॉर्पस के अंदर, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टाइल्स के अंदर, वो आता है लोगों को, एंड दैट इज obviously a very nice feeling which keeps me going and creating more videos. वरना तो जैसे मैं तेरे को पहले बताया ही ना कि भैया 10 घंटा पेन है और 1 घंटे का प्लेजर है, क्यों मैं करूंगा वो 10 घंटे का पेन? Because this pleasure part of it, this reward of people हाँ, coming to you and talking to you, ये तो भैया चलता रहता है कि मतलब
3 महीने बाद भी रैंडमली कोई मिल जाएगा, अरे सर आपका मैंने वो रियल एस्टेट वाला वीडियो देखा था, बढ़िया था यार। अच्छा। That will happen at any point of time. So that plus is there. awesome, awesome. सर आपको थोड़ा सा ना उधर आना पड़ेगा टुवर्ड्स योर, हाँ हाँ और ठीक है, नहीं बस परफेक्ट परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट. So I was saying, sir, that's great. And again, it's a big decision. Of course, it's a big decision if someone is trying to retire early, right? And if he takes that decision, right? I think life changes a lot after that. A lot of your mindset changes towards a lot of things, especially your, I mean, for the lack of a better word, your relationship with the money itself changes, I believe. You will be able to give a better it does. perspective. तो यही मैं It absolutely does. मतलब वो तो होता ही है यार, क्योंकि पहले एक वो कॉन्फिडेंस रहता है कि अच्छा हाँ, लेट्स से even if I'm making a bad financial decision, I can obviously recover from it. तो पहले तो एक ये रहता है ना कि if I'm making a bad financial decision, I can recover from it very very easily, कि मैं हाँ 2 महीने में 2 साल में वो पैसा वापस और कमा लूंगा. So that is the negative aspect of it. The positive aspect of it is that once you see that money is there and you start gaining confidence on it, you tend to spend it in a much better way. Now you have the time to spend it as well. भाई बहुत सारी चीजें पे तुम इसलिए खर्चा नहीं कर पाते थे पहले कि तुम्हारे पास में टाइम ही नहीं होता था उनको करने का. एंड दैट हैज चेंज. अब तुम्हारे पास में टाइम है तो तुम उनके ऊपर खर्चा कर पाते हो. एंड सो यू बिकम a more how do I say it, you are not maybe spending more or you are spending less, but you are spending in a much wiser fashion. तुम सोच के समझ के कि कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन सी चीजें जरूरी नहीं है, और जब इतना मेरे पास में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो मैं क्यों नहीं इस चीज के अय्याशी के ऊपर पैसा उड़ाऊं. Why shouldn't I spend on it? Because now your life plan is set कि अच्छा हाँ मेरे को हर साल इतना पैसा तो आता ही रहेगा ना यार, तो क्या टेंशन है. सो वो एक स्ट्रक्चर आ जाता है, एक मेथड आ जाता है विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल स्पेशली टू समवन लाइक मी, जो कि यही होता था कि अच्छा हाँ यार पैसा है, खर्चा कम करो, थोड़ा और कम करो, बचा लेते हैं, बाद में काम आ जाएगा एंड ऑल दैट, जो कि अब बाद में काम आ रहा है. सो बट वो बाद में काम आना चाहिए. सो जैसे कहते हैं ना कि जो पहले ग्रेटिफिकेशन डिले किया था वो अब तुमको करने को मिल जाता है. सो यू हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद मनी. यू आर एबल टू यूज इट, कंज्यूम इट इन अ मच बेटर फैशन. So I mean, if we go a little deeper on that, not in a general way, but from your own life experience and from your own perspective, अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर आप अभी भी after your company got acquired and you were continuing with the acquiring firm, अगर आप आज भी मान लीजिए वहीं पे उनके साथ काम कर रहे होते, right, you would have earning the same income versus how you're spending today or your current scenario. What major differences you can think of in terms of again your relationship with the money, कि अगर मैं वो होता आज वो कर रहा होता तो यार ये मैं चीजें इस तरह सोच होती मेरी और आज इस तरह सोचा. सो आई थिंक मैं इसलिए ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को ये लगने लग गया था कि अब मैं जो भी पैसा बचा रहा हूं वो मैं अपने बच्चे के लिए बचा रहा हूं, क्योंकि मेरे को जितना यूज करना है, कंज्यूम करना है, वो तो भैया पक्का मैंने अपना बना लिया है. बिकॉज जो मेरी लाइफस्टाइल है, जो मेरी इच्छाएं हैं, अब मेरी इच्छा कभी कभी ऐसी होती है कि अच्छा हाँ मैं जाके मर्सिडीज ले लूं, BMW ले लूं, बट फिर मैं ये देखता हूं कि यार मैं चलाता हूं, साल में मेरी 5-6 हजार किलोमीटर तो कुल गाड़ी चलती है. 8 साल हो गए मेरी गाड़ी को, वो चली 40,000 किलोमीटर है, तो क्या पॉइंट है फिर मर्सिडीज लेके या BMW लेके. और
कभी कभी फिर मेरी इच्छा होती है कि अच्छा हाँ मैं बिजनेस क्लास फ्लाई कर लूं, कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि अच्छा हाँ मैं जाके एकदम 5 स्टार के एकदम बढ़िया वाले ताज के होटल रूम में रहूं, तो कभी कभी मैं रह लेता हूँ। हाँ बट हाँ, फिर मेरे को ये लगता है कि जब मैं रहता हूँ, मैं आई थिंक दिस वाज इन हयात में, काठमांडू गया था मैं, तो काठमांडू के अंदर हयात इज द ओनली बिग डिसेंट होटल व्हिच वाज देयर। तो वहां मेरा कुछ 16-17 हजार के आसपास का रूम था। टिपिकली जब मैं इंडिया में ट्रैवल करता हूं तो मैं 10,000 रुपए वाले रूम के अंदर या 15,000 12,000 रुपए वाले रूम के अंदर मैं ट्रैवल करता हूँ। सो मैं वहां पे गया, मैं 17,000 रुपए दे रहा हूँ, और जबकि मेरे को तो लोगों ने बोला था अरे नेपाल तो बड़ा सस्ता है, बड़ा सस्ता है, बड़ा सस्ता है। फिर हाँ, फिर मेरे को लगा कि यार, और एक्चुअली बहुत सस्ता है भी, मतलब तुम जस्ट होटल के बाहर हम्म, निकलोगे ना तो तुमको समझ में आएगा। हम्म, मेरे को यार वो एक्स्ट्रा प्रीमियम देने का फायदा नजर ही नहीं आया कि यार किस बात के लिए मैं वो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा हूँ। सो हम्म, आई फेल्ट दैट डिफरेंस इन मेनी टाइम्स, लेट्स से इन सम थिंग्स, जैसे कि विस्की हो गई है। विस्की के अंदर मैं जितनी महंगी विस्की पीता हूँ मेरे को अच्छा लगता है, मजा आता है। बट हम्म, घड़ी है, अब घड़ी के अंदर मेरे को नहीं समझ आता है, नहीं मजा आता है कि अच्छा मैं रोलेक्स की ले लूं या किसकी ले लूं। सो दैट नीड और रिक्वायरमेंट, वो मेरी पिछले 15-20 साल में ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि अब मेरे को लगता ही नहीं है। सो दैट इज वाई, अगर मैं और काम करता रहता, मैं और पैसा बनाता भी रहता, तो भी मेरे हम्म, खर्चे तो यही होने वाले थे। तो मैं जो भी और पैसा बनाता, हम्म, वो मेरी जायदाद के अंदर ऐड हो जाता। मेरे बेटे को 100 रुपए हाँ, मिलते, 100 की जगह 105 रुपए मिलेंगे, तो भैया मिलने दो ना, उसके लिए मैं काय को काम करूं, खुद करेगा वो काम, कमाएगा, अपना कमाना होगा तो। अच्छा। सो दैट इज वाई तब आप इट मर्सिडीज नहीं खरीदते, है। तब आप मर्सिडीज नहीं खरीदते फॉर श्योर। हाँ हाँ, तब भी नहीं खरीदता मैं, क्योंकि खरीदनी होती तो ओके। यार मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, अगर मेरे को ये सब खरीदना होता, ये सब का कुछ भी होता, तो जब मेरी कंपनी का एक्विजिशन हुआ था तब मेरे पास में कैश फ्लो आया था। जब मेरा बिजनेस हम्म, अच्छा चल रहा था तब मेरे पास में कैश फ्लो आया था। तो तब भी मैंने सोचा था, तब तो नया नया हम्म, पैसा आया था यार एकदम, तब भी मैंने सोचा था अपना बिजनेस चल रहा है, और बिजनेस चल रहा होता है ना, बिजनेस के अंदर अगर तुम मर्सिडीज या कोई भी लग्जरी गाड़ी लेता है और तुम उसको लीज पे लेता है, बॉस, हम्म, यू कैन क्लेम सो मच पोर्शन ऑफ दैट एज अ बिजनेस एक्सपेंस कि तुम्हारी टैक्स हाँ, लाइबिलिटी काफी कम हो जाती है, मतलब रियली रियली हेल्प्स इन टैक्सेस। तो जब मेरे को अपना बिजनेस चला हाँ, रहा था, मैं जब मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा था, तो भैया मैं हाँ, उसकी टैक्स लाइबिलिटी कम करने के लिए भी मैंने मर्सिडीज लेने की सोची थी, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस लीज थिंग। बट हाँ, फिर मेरे को ये लगा कि यार चलो खर्चा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, दे देते हैं भैया टैक्स वगैरह, क्यों फालतू खर्चा किया जाए। तो मैंने जब तब हम्म, नहीं किया, जब मेरी कंपनी अक्वायर हुई तब नहीं किया, तो आई डोंट रियली थिंक कि मेरी लाइफस्टाइल में अब और बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो हम्म, और बच्चे के लिए मेरे को और कमाने का कोई श्रद्धा नहीं है, जितना है उसके लिए काफी है, उसमें उसका चल जाएगा। हम्म। हाँ नहीं, यू शुड, आई थिंक इनको सक्षम बनाने की ज्यादा जरूरत है इंस्टेड ऑफ Absolutely. And या, see, for kids, I do believe that, you need to be there as a support system, but, you cannot be pulling them throughout their life. तो राइट, वो राइट, ट्रेनिंग व्हील्स जो है ना, वो रहने चाहिए, ऑब्वियसली रहने चाहिए ट्रेनिंग व्हील साइकिल के अंदर, बट जिंदगी भर ट्रेनिंग व्हील पे थोड़ी चलाएगा यार, अपने आप ही उसको चलाना पड़ेगा। और वो फॉर द ट्रेनिंग, what do you need to provide? You need to provide a good environment, a healthy environment. You need to provide the best possible education, best possible opportunities. And I do believe that I will be able to provide for his best possible education and other opportunities. So I have funds marked for that as well. So राइट, didn't really see much reason in continuing to work for the money. ओके, हाँ, राइट। दैट वाज इम्पोर्टेंट, ओके, दैट्स ग्रेट। आपने मेंशन किया, व्हेन यू एग्जिटेड यू हैड cash flows coming in, good chunk of cash flows coming in. So, Hmm. little bit more on that. How? Hmm. So, I think Handa Ka Funda was the company that you were running, right? The edtech company Correct. that you were running, Correct. है ना? And it got acquired by an academy, Correct. right? So, can you take us to the through the whole process as to both the things?
you deciding to getting acquired, and even an academy deciding to acquire Honda ka Funda. How does the investment decision on their part was like, and on your part, and then a bit on the nitty-gritty technical aspects as well, ki cash flows or किस में deal होती है, cash plus stocks, something like that. How does that Fair. work? Fair. So essentially, I think I thought that I should probably sell it off in 2019. Maybe was the first 2018, 2019 is the period when I first started thinking of selling it. And but I still had hopes that okay, maybe this happens, maybe that happens, business would recover, etc., etc. 2020 is when I decided that no, boss, I need to now seriously think about selling it or make some sort of substantial changes. So in early 2020, I reached out to Unacademy and few other edtech companies. Now I can't really name them because they are not the ones who acquired. So I reached out to Unacademy, few others, negotiated over some price points. We were not able to come to any sort of a deal price at that point of time. Then in late 2020 is once again we started conversations कि क्या कर सकते हैं, and at that point of time we were able to come to some sort of a mutual agreement which works for both of us. And early 2021 is when we signed the papers and the assets were transferred. So this was the journey, so to say. And about the cash flows, etc. So how I decided how much money is good for this or not, I thought about that. Okay, over the period of next 5 years, how much amount of profit after tax I will be able to accumulate if I keep on running this business. And I looked at the offer that was made by them, and I realized that okay, if I continue with them for even a little bit, if I continue with them for a decentish period, I get some of the stocks, I get some of the cash part and credits, that deal started looking favorable. मैंने कहा कि यार वहां पे पैसा मेरा ज्यादा बन जाएगा और यहाँ पे तो गारंटीड मेरे को 5 साल काम करना ही पड़ेगा, मैं जब अपना धंधा चला रहा हूं उतना पैसा बनाने के लिए. वहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अच्छा हाँ हो सकता है मैं 2 साल के बाद में ही आजाद हो जाऊं, 4 साल के बाद में आजाद हो जाऊं, 3 साल के बाद में आजाद हो जाऊं, या मेरे को 5 साल वहां पे लगे, या मेरे को अच्छा लगता है तो वहां पे मैं 7-8 साल कंटिन्यू कर लूं. ऑल दोस पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट द फाइनेंशियल ब्रेक इवन कम्स इन वेरी वेरी अर्ली, क्योंकि वो पैसा तुमको एक साथ कैश मिल जाता है. एक साथ तुमको कैश मिल जाएगा तो तुम उसको कहीं इन्वेस्ट भी कर पाएगा, तुम्हारा फाइनेंस भाई उसके ऊपर भी तो रिटर्न कमाएगा ना तुम. सो it became a very mathematical sort of a decision for me कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, कौन से वाले के अंदर वो बेटर रहेगा. Based upon that is how I decided. उन लोगों के लिए जो डिसीजन था वो इस बेसिस पे था कि अगर हम लोग होंडा की कंपनी को अक्वायर कर लेते हैं तो हम लोगों की कंपनी को कितना फायदा हो जाएगा. So that is how those guys decide that okay, if I'm paying Honda 100 rupees, will I be able to make 101 rupees from this transaction over a longish period of time, and which I believe they do very very early, क्योंकि वो लोग एक डिसेंट प्लेयर को मार्केट से निकाल दे रहे थे. तो मैं अपने जो प्रोडक्ट्स थे वो 5,000 से 10,000 रुपए के प्राइस पॉइंट में बेचता था. वही प्रोडक्ट्स वो लोग जो है वो 20,000 से 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट में बेचते थे. ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट मुझसे जो है 10 गुना बेटर था, इसमें कोई डाउट नहीं है. मतलब दे वर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब. इसीलिए तो मेरा धंधा जो है वो गिरने लग गया था, क्योंकि बाकी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे. ऐसा मैं थोड़ी खराब हो गया था. मैं तो भैया बढ़िया काम 2012 में भी कर रहा था, 15-16 में बढ़ा इसीलिए क्योंकि वो हो गया, और 2020 में गिरा इसीलिए क्योंकि मेरा तो लेवल वही रहा है या इंप्रूव हुआ है. पहले कंपटीशन बिल्कुल नहीं था, फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया. So they were able to eliminate a competitor from the market, and by me going there,
मैं अपने साथ में अपने बहुत सारे कस्टमर्स को भी तो लेके आऊंगा, विच विल मेक मनी फॉर राइट। देम। मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेस से, मेरी 8 लोगों की कंपनी है, 8 लोगों के कंपनी के सपोर्ट से मैं जितना धंधा जनरेट कर रहा हूं, भैया उन लोगों की तो 2000 लोग की टीम है, जो कि है हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, आइडिएशन के लिए, उनके पास में पैसा है ऐड चलाने के लिए। तो अगर मैं अपने लिए 100 रुपया कमा पा रहा हूं, तो उनके लिए तो मैं ज्यादा कमा पाऊंगा। ये ओके। सारे डिसीजन के बेसिस पे, दैट इज यू नो हाउ दे डिसाइड टू बाय अ कंपनी, दैट व्हाट इज इन इट फॉर देम, आई डिसाइड बेस्ड अपॉन व्हाट इज इन इट फॉर मी। जो हम लोगों का पहले नेगोशिएशन हुआ था विद अन अकेडमी इटसेल्फ, जो कि हम लोगों का फरवरी मार्च के अंदर हुआ था, उसके अंदर ना तो मेरे को अपने को जो मिल रहा है उसमें बेनिफिट नजर आ रहा था, ना उनको जो मिल रहा है उसमें उनको बेनिफिट नजर आ रहा था, इसलिए उस टाइम पे डील नहीं हुई। इट वाज द सेम पीपल, सेम बिजनेसेस, सेम लॉजिक। राइट। Then ठीक when है। we talked again, when we restructured the deal in such a fashion कि अच्छा हाँ कैश कंपोनेंट कितना होगा, कब कितना मिलेगा, and all of that, then it started working in favor of both of us. ओके। सो उस डील में आपको स्टॉक्स भी मिले थे कंपनी के? नहीं, डील में मेरे को स्टॉक्स नहीं मिले थे। सो डील जो हुई थी वो दो कंपनीज के बीच में हुई थी। सो द कंपनी दैट आई यूज्ड टू रन वाज हांडा एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। An academy is ओके। being run by Sorting Hat Private Limited. तो Sorting Hat हम्म। Private Limited ने हांडा एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से एसेट्स को खरीद लिया था और उन एसेट्स के ओके। पैसे दे दिए थे। ओके। रवि हांडा को एज एन एम्प्लॉय हायर कर लिया था, और फिर जैसे एक एम्प्लॉय को ईसॉप्स मिलते हैं, वैसे ही मेरे को ईसॉप्स मिले थे। बट अगर मैं नौकरी करने के लिए वहां पे जाता, तो मेरे को 100 रुपए के अगर ईसॉप्स मिलते मेरे टैलेंट के ऊपर, मेरी सैलरी के ऊपर, एंड जिस भी रीजन से, बिकॉज मैं कंपनी अक्वायर होके आया था, मेरे को 100 रुपए की बजाय शायद 500 रुपए के ईसॉप्स मिले। द अमाउंट ऑफ ईसॉप्स दैट आई गॉट वर हायर देन व्हाट other people at my level were making in the company. ओके। वो था। And the team at Honda का फंडा all were acquired, I mean they all joined an academy? No, so all of them were given an option कि यार या तो तुम जो है अपना 3 महीने की सैलरी ले लो और खुश हो जाओ, या तुमको बैंगलोर जाना पड़ेगा अन अकेडमी ज्वाइन करने के लिए। So it became अच्छा। very easy decision for almost, हाँ सर हमको तो आप 3 महीने की तनख्वाह दो, एंड प्लस एक तो 3 महीने की तनख्वाह का बोनस वाला पार्ट हो गया। और भाई जब डील हुई हम लोगों की, जब अग्रीमेंट हुआ, मतलब नॉट द रिटन अग्रीमेंट, व्हेन आई एम सेइंग दैट आई एम प्रॉमिसिंग देम कि अच्छा हाँ भैया ये होने वाला है, बिकॉज यू नो इफ मी एंड द फाउंडर, हम लोग दोनों ने अग्री कर लिया कि हाँ भैया अब ये होने वाला है, तो वो अग्रीमेंट हम, आफ्टर द अग्रीमेंट, द एक्चुअल साइनिंग एंड द ट्रांसफर ऑफ द मनी, दैट इज अ लॉन्ग पीरियड। पूरा उसके अंदर ड्यू डिलिजेंस होता है, वो लोग 50 चीजें चेक करते हैं कि आपने सबमिट किया या नहीं किया, अपना सारा ये वाला डेटा देना, इट टेक्स टाइम। पैसा वगैरह जो है एकदम एंड में मिलता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा हाँ जी डील हो गई और कल उन्होंने चेक पकड़ा दिया। सो between when you agree on the deal and when you actually get money in the bank, there is a period. तो मैं तो जब डील हुई तभी मैंने एम्प्लॉय लोग को बोल दिया कि भैया सब लोग अपना खोजना चालू कर दो, क्योंकि दिस इज मोर और लेस अ डन डील। हो ही गई है यार, फाउंडर ने मेरे से बात कर ली है, वी हैव shook hands on it, we have agreed on broad terms। एक टर्म शीट करके होती है when such a transaction is happening। once we have signed the term sheet, although it is not binding, but एक बार टर्म शीट दोनों ने साइन कर ली तो फिर ये हो गया कि हाँ यार ये कहानी मोर और लेस सेटल हो ही जाएगी। तो टर्म शीट साइन करने के बाद में मैंने अपने एम्प्लॉय लोग को बता दिया था कि भैया नौकरी वोकरी खोजना चालू कर दो, जब तक ये लगेगा, जब तक कंपनी, अब मान लो अगर नहीं हुआ कुछ, तो मैं कंपनी बंद करके थोड़ी बैठ जाऊंगा, कंपनी को तो मेरे को चलाना ही है कि, तो वो कंपनी चलती रहेगी। जब भी ये डील होती है उसके बाद में तुमको आने की जरूरत नहीं है, और तुमको 3 महीने तक उसके अलावा फ्री का पैसा और मैं देता रहूंगा। ठीक है। और अगर तुमको ये है कि नहीं 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 वो नहीं चाहिए, तो भैया अन अकेडमी के अंदर तुमको तो चांस मिल ही जाएगा, तुमको बैंगलोर जाना पड़ेगा, बताओ मैं तुम्हारी बैंगलोर में नौकरी लगवानी है क्या, which no one wanted because these were people who were working in Jaipur। फिर मैंने सब अपने यार दोस्तों, वहां से दोस्तों को फोन वोन करके कि अच्छा हाँ यार ये बढ़िया बंदा है, इसको ले ले, इसको ले ले। कहीं ना कहीं सबको तो मैं नहीं लगवा पाया था, बट आई डू बिलीव
4-5 की नौकरी आउट ऑफ 7-8 जो है वो तो लग गई थी इन द पीरियड इटसेल्फ। Okay. That's great. Oh, that's great. That's great. I mean, exits are a very, mysterious thing, I believe. मतलब वैसे न्यूज़ तो आ जाती है आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम में कि यहाँ से एग्जिट हो गया या यहाँ एक्वायर हो गया, बट हाउ डू दे रियली फंक्शन, right? It's something has always been of interest to, I think, a lot of people who follow the Indian startup ecosystem. So that's, I think, a great insight that you have given us. Unacademy is, like you said, then back then was a $1 billion company. It's a VC funded company, right? So which actually naturally brings me to my next question. Do you have you invested in startups via funds or something like that, Yes. or directly maybe? Yes. So I think I started investing in startups maybe in 2016 or 17. The first Directly? investment. Okay, please go on. Yeah. हाँ, बोल क्या बोल रहा था? मैं पूछा था directly was the अच्छा, you हाँ, started investing in? So I first started investing in 2016 or 17 in startups, and what I did was, it was actually a few of my friends. They had started a very small fund, which was known as Operator VC at that point of time. So Okay. what they did was, Operator VC, they pulled in a bunch of friends, they pulled in the money, और वो फिर पैसा वो लोग स्टार्टअप्स के अंदर लगाते थे. So उस फंड के अंदर जो एक दो पार्टनर्स थे, उनसे मेरी जान पहचान थी. एक अभिषेक अग्रवाल करके था, एक अक्षत करके है. तो ये लोग वो फंड चला रहे थे. मेरे को लगा कि अच्छा, हाँ ठीक है. सो आई थिंक जो टिकट साइज था, मिनिमम इसका टिकट साइज कुछ 5 लाख रुपए के आसपास का था. मैंने कहा कि अच्छा, हाँ, ट्राई मारने के लिए ये काम करते हैं, इसके अंदर मैं 5 लाख रुपया लगा देता हूँ. सो दैट इज व्हाट माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वाज वाया दिस फंड रूट. फिर उसके बाद में मेरे अपने यार दोस्तों से, लोगों से जब बात होने लगी, तो मेरे को पता लगा कि अच्छा, हाँ यार, ये दोस्त है, ये पैसा रेस कर रहा है, वो दोस्त है, वो पैसा रेस कर रहा है, वो फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड है. तो उसके बाद से जब मेरे को मौका मिलता था, मैं थोड़ा बहुत लोगों से पूछने लगा कि क्या होता है, कैसे होता है. वेरी इजीली मेरे नेटवर्क में बहुत सारे लोग थे जो ये सब कर रहे थे, तो मेरे को ज्ञान मिल गया. हाँ भैया, ऐसे कहानी चलती है. फिर मेरा एक दोस्त है जिसके साथ में मैंने माइंटिकल में काम किया था 2012 में, संचित करके. तो वो अपनी कंपनी के लिए पैसा रेस कर रहा था. मेरे को लगा यार, इसको मैं पैसा दूं नहीं दूं, तो और मैंने डर के मारे पैसा उसको नहीं दिया. और मैंने उसको अपने 4-5 और दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाया जो कि इन्वेस्ट कर रहे थे, और सब बोले कि यार ये तो बहुत बढ़िया लगाते पैसा, इसमें लगाते. तो मैं जिसको भी इंट्रोड्यूस करवाया, उन लोगों ने जाके पैसा लगा दिया. मेरी खुद की जो है, मैं डर के मारे कि नहीं यार, ये सब कहाँ इंडिविजुअल कंपनी में पैसा लगाएंगे, मैंने नहीं लगाया. और कंपनी चल गई उसकी. सो कंपनी चल गई. फिर उसकी भी कंपनी बाद में अक्वायर हो गई. उसकी कंपनी को इसने बुक माई शो ने अक्वायर किया था. अच्छा, ओके. और यू नो, एंड एवरीवन हु इन्वेस्टेड, सबने मस्त पैसा उसके अंदर बनाया. सो ओवर दिस पीरियड, सो व्हेन दिस वाज हैपनिंग, दैट्स व्हेन आई फेल्ट कि यार, मेरे को भी जो है ना, डायरेक्ट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए. फिर उसके बाद में मैंने कुछ अपने जान पहचान वाली कंपनीज के अंदर, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, या मेरा कोई जूनियर है, उसके साथ में जान पहचान वाला था, तो जहां जहां मेरे को कुछ डायरेक्टली जान पहचान मिलती रही, वहां मैं कभी जब, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, बट कभी कभी मैं स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करता रहा. मतलब कि तो जैसे मैंने, अगर मैं याद करूं, नाउ आई एम नॉट नेमिंग द कंपनीज बिकॉज़ सम ऑफ देम आर डूइंग वेल एंड सम ऑफ देम आर नॉन एग्जिस्टेंट. एक मैंने अपने सीनियर की कंपनी में, कॉलेज सीनियर की कंपनी में पैसा डाला है. एक मैंने कॉलेज जूनियर की कंपनी में पैसा डाला है. एक मैंने मेरा कॉलेज का क्लासमेट था, उसकी वाइफ जिस कंपनी में काम करती थी, वहां पे उसका एक दोस्त था, वो कंपनी चालू कर रहा था, तो उसके थ्रू मैंने उस कंपनी में पैसा डाला है. एक मैं जहां पे पहले बचपन में रहता था, वहां पे एक और फैमिली रहती थी. उनकी फैमिली और मेरे पापा की फैमिली दोस्त थे. तो अब उनका लड़का जो है, उससे मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान है. अब उस लड़के ने अपनी कंपनी डाली, तो फिर मैंने उसकी कंपनी के अंदर पैसा डाला.
है। सो ऐसे ही करके कहीं कहीं नेटवर्क वगैरह के अंदर मिलते हाँ रहे इंडिविजुअल्स, तो उनके अंदर मैं पैसा डालता रहा और चल रही है वो कहानी। एंड फिर बहुत रिसेंटली जो मैंने जिस कंपनी के अंदर 2016 में पैसा डाला था, जो मैं बता रहा था फंड के अंदर, राइट 2024 के अंदर, अब 2016 में तो यार उनको भी उतना शायद आइडिया नहीं था, छोटा छोटा फंड रेस कर रहे थे वो लोग, 5-5 लाख का चेक साइज ले रहे थे 2016 में। अब भाई साहब प्रॉपर सेबी रजिस्टर्ड फंड उन लोगों ने चालू किया है। तो एंड जो उनका पहले वाला फंड था उसके अंदर उन्होंने रिटर्न्स भी दिए हैं, उन्होंने पैसा भी कमा के दिया है, दे हैव डन वेल। तो मैं कहा यार अब वही आदमी वापस चालू कर रहा है, वापस आया वे, हाँ डालेगा क्या? तो हम बोला हाँ डालूंगा, बट इस बार बोल रहा है उसको 25 लाख चाहिए। उसको 25 लाख इसलिए चाहिए बिकॉज इट्स अ सेबी रजिस्टर्ड, सेबी का कोई गाइडलाइन। कैटेगरी, आई थिंक कैटेगरी 3 फंड है नो इट्स एडीएफ का। अ कैटेगरी 1 एंजल फंड आई बिलीव। ओके कैटेगरी नहीं पता है मेरे को, सो बट वट एवर दैट फंड इज, उसके अंदर सेबी हाँ ने ही रूल लगा रखा है कि आपको कम से कम 25 लाख देना पड़ेगा। तो मैं उससे मिनिमम बोलता हाँ कि यार कुछ देख ले, एडजस्ट कर ले, तो वो मौका ही नहीं मिला देख ले एडजस्ट करने का। भैया अब तो सेबी का रूल है तो है। तो हाँ दैट्स 25 लाख फिर राइट। मैंने उसके ये फंड में डाला है। So I've taken the fund route, which was the operator VC thing. That's what I did. Now this is the SEBI category 1 angel fund route, and there have been a few individual angel investments, which have been primarily driven by my network. Right. And I think that's mostly the case with a lot of angel investors now as well in India. They have made investments via their network, right? Especially, you know, before the funding winter, or to say, and post COVID, FOMO driven ज़्यादा हो गया था ये angel investment का space, right? People were just investing because a lot of people around them were investing, and especially on social media like LinkedIn, there was a very noise about startup investments and democratization, which was again which did some good, but also did I think a lot of bad as well in terms of creating conviction in investors in the startup ecosystem. That's what I believe. मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी क्या learnings रही है just purely in the angel investment space. यार ऐसी कोई लर्निंग्स नहीं रही है, क्योंकि मैंने इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए ही नहीं है। सो इफ आई थिंक अबाउट इट, मतलब I might be wrong about this, but I think the total number of angel investments I would have made would be 9 or 10. And other than the fund routes that I have taken. So the fund route idea is definitely better than this individual idea as of today for me. अब इसके अंदर ये as of today भी important है और for me भी बहुत important है, क्योंकि as of today मेरे को जो भी पैसा वापस आया है ना, वो सिर्फ मेरे वो fund 1 से पैसा वापस आया है, and which has done decent enough return. मेरे जो एंजल इन्वेस्टमेंट्स मैंने किए हैं उनमें से मेरे को कहीं से भी किसी का भी पैसा वापस आया नहीं है। कुछ कुछ उसमें से इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे कि मैंने सपोज 8 लाख रुपया डाला था और वो जीरो हो गया, कहीं 5 लाख रुपया डाला था, वो कंपनी का जो फाउंडर है उसने मेरा उसने ही खुद ने छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। सो देयर आर दोज फेलियर्स। बट उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे भी हैं यार जिसके अंदर मैंने 5 लाख रुपया डाला था और लास्ट राउंड के हिसाब से देखो तो उसका वैल्यूएशन जो है वो 80 लाख हो गया है। अब अगर मैं उसको 80 लाख मान लूं तो भैया इंडिविजुअल मेरी जो इन्वेस्टिंग रही है वो बहुत ही अच्छी रही है। बट अगर मैं उसको मानूं कि नहीं भैया, ये तो मैं तब मानूंगा जब पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, हाँ तो कुछ भी नहीं आया भाई। मतलब देयर हैव बीन कंपनीज इन एंजल इन्वेस्टमेंट, मतलब I think 2 of my most recent investments have given me the absolute different experiences. 2023 में मैंने 2 इन्वेस्टमेंट्स किए थे, my dates might be a little bit wrong. एक था जिसके अंदर मैंने 5 लाख रुपया डाला था और वो 3 महीने के अंदर ही भैया फाउंडर ने मना कर दिया कि नहीं भैया कुछ नहीं होने वाला है। 3 महीने तो यार लोगों को प्रोसेस करने में लग जाते हैं, तुम 3 महीने में ही गायब हो गए। बट हो गए तो हो गए, क्या कर सकते हो यार, नहीं चल रहा है, डिडंट वर्क। और ऐसा नहीं है कि वो आदमी बेईमान था या कुछ भी था, मतलब बढ़िया स्मार्ट आदमी है, बट जस्ट कुडंट
take it to the next level. And this was a very very early stage funding. मतलब एकदम सीड लेवल पे पहला पैसा कौन दे रहा है, हाँ जी हम ही दोस्त लोग ही दे रहे हैं, तो वो सब्सिक्वेंट राउंड रेज ही नहीं कर पाया और उसकी कहानी आगे जा नहीं पाई. उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने एक दूसरे के अंदर आई थिंक पैसा डाला था. एंड दिस वाज अ गाय हु आई एक्चुअली मेट वर्किंग एट अन अकेडमी. वो भी अन अकेडमी छोड़ के उसने अपनी नई चालू की थी, और भाई साहब 3 महीने में उसने अगला राउंड रेस कर लिया 10x पे. ये बढ़िया यार, 3 महीने में कहीं और तो 10x. अब मैं उसको 10x अपना मानूं या नहीं मानूं? अगर मैं उसको 10x मानता हूं तो मेरी एंजल इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत ही बढ़िया है. बट 10x पे तो भैया उसने अपना सीड रेस किया है, जो ऑफिशियल सीड होता है. तो अभी ऑफिशियल सीड के बाद में फिर सीरीज ए होगा, फिर बी होगा, फिर जाके कहीं कुछ एक्विजिशन की कहानी आएगी, फिर जाके कहीं पैसा मिलेगा. तब तक तो भाई साहब बचे या ना बचे कोई कुछ नहीं बोल सकते. So that is why it's very difficult for even me to say that whether this works or it doesn't work, because 6 महीने बाद में, अच्छा हाँ, जैसे एक और कंपनी के अंदर है जिसके बारे में तो मैं बहुत प्राउडली बता सकता हूँ, मैककैफीन करके कंपनी है, बढ़िया. वो लोग हेयर केयर के और इन सब के प्रोडक्ट्स बनाते हैं. प्लीज आप लोग प्लीज जाके खरीदिएगा उनको. आप खरीदेंगे तो मेरा बहुत फायदा होगा. सो प्लीज मैककैफीन के अंदर मैं एक अर्ली इन्वेस्टर था, और वो लोग का जो है, अब वो उसके तो फाउंडर लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हाँ अंडा, अब एग्जिट का टाइम जो है वो आ गया है. तो अब वो लोग जब ऐसी बात करते हैं कि क्योंकि उनको बड़ा राउंड अब रेस करना है, अब बड़ा राउंड रेस करना है, तो हम जैसे चिंदी चोर जो लोग हैं उनको वो हटाएंगे कि अच्छा हाँ तुमको. भैया वो लोग जब कंपनी 500 करोड़ की हो जाती है, तो जिसका 30 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का शेयर है, दे वांट दोस पीपल ऑफ द कैप टेबल. एंड हाउ डू यू गेट देम ऑफ द कैप? हाउ डू यू गेट दी स्मॉल पीपल ऑफ द कैप टेबल? कि भैया जो नया इन्वेस्टर आएगा, ही विल बाय योर स्टेक्स आउट. तो जब भी मैककैफीन की नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग होती है, मोस्ट प्रोबेबली मेरे को एग्जिट मिल जाएगा. अब वो हो सकता है अगले 6 महीने में हो जाए, हो सकता है वो अगले 3 साल में नहीं हो. तो इट हैज बीन गुड और नॉट. तुम 6 महीने बाद में अगर मैं ये वीडियो देख रहा हूँ तब तक मैककैफीन की एग्जिट हो गई होगी, तो इट वुड बी अ वेरी डिफरेंट आंसर कि अच्छा है, नहीं है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या नहीं है. तो बहुत हवा में है. The other thing that I have learned with it is that the money that you are putting in, at least in an individual bet, you have to assume it is going to zero. अगर तुमको उससे जरा सा भी फर्क पड़ता है कि नहीं यार ये पैसा मेरा डूब गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आप वो इंडिविजुअल वाली एंजल इन्वेस्टिंग बिल्कुल मत करिए. if that amount of money is so important for you, and it is not just based upon if it is important to you कि उसके आपका सर्वाइवर के लिए. यार अगर तुम्हारे पास में 500 रुपया है और तुमको 5 रुपया खो जाने पे दुख होता है या नहीं होता, ये सिर्फ तुम जानते हो. तो अगर तुमको 1% के अंदर दुख हो रहा है, तो देन आप इंडिविजुअल में मत डालिए, फंड में डालो. फंड्स के अंदर नाउ आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि आप कोई भी वीसी फंड के अंदर पैसा डालेंगे, कोई भी वो सेबी रजिस्टर्ड फंड के अंदर पैसा डालेंगे, वो आपको मार्केट से कम देगा, ज्यादा देगा, एफडी से कम देगा, ज्यादा देगा, 30% सीएजीआर देगा, 5% सीएजीआर देगा, किसी को कुछ नहीं पता है. बट ऐसा नहीं है कि वो आपका पैसा जीरो नहीं होने देगा, बिकॉज the money that you are putting in, that will get distributed in 20 companies and distributed in 100 companies. Maybe some of them will be successful, maybe some of them will fail. All of them are not going to fail. ये आदमी जो फंड चला रहा है, भैया तुमसे तो ज्यादा कैलिबर रखता है वो, इसीलिए वो फंड चला रहा है. कि तुम सोचते हो कि नहीं तुम बहुत तोप हो, तुम बढ़िया कंपनी खोज लोगे, तुम समझ में आता है. अगर तुम में इतना कॉन्फिडेंस है और तुम इतना ही तोप हो, चालू करो अपना फंड. क्यों नहीं चालू करो? If you have that much talent that I can go ahead and pick the right startup companies and make money, then boss, please go ahead and start your own fund. मैंने बोला एक दोस्त को, उसने पट्टे ने चालू भी कर दिया है. शरद करके दोस्त है. अच्छा शरद, या शरद बंसल. तो उसने तो अपना वीसी फंड ही चालू कर दिया. हाँ यार बात तो सही है, अगर हम इतने ही तोप हैं एंजल इन्वेस्टिंग में, तो क्यों नहीं हम अपना फंड चालू करें? भाई साहब ने चालू कर दिया. So if anyone watching this, if there is anyone watching this and they believe that they are good at angel investing, starting your own VC fund is not that difficult these days. To be really honest, अगर आप
10 करोड़ भी इकट्ठा कर सकते हो अपने जान पहचान वालों में, अलग अलग लोगों से रेस करके। मान लो तुम 20 ऐसे लोगों को जानते हो जो कि 50-50 लाख रुपया तुमको देने को तैयार हैं। I think there are micro VCs which are operating at that level, and you can and you should try it out if you believe that, if you have that amount of confidence कि तुम अच्छे angel investments pick कर सकते हो। Right. Yeah, I think that what matters the most in this particular asset class, at least, which is a good amount of diversification. मतलब आपने जो 10 कंपनी में इन्वेस्ट की, आई बिलीव कि बिकॉज आपने वो 10 कंपनियों में इन्वेस्ट की है, इसलिए उसमें से शायद से 2-3 हैं जो आपको अभी अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, एटलीस्ट ऑन द पेपर, जिसमें आपका 80x हो गया या जितना भी है 3 महीने में। बट यही अगर कोई सिर्फ अगर मतलब हाईली लाइकली अगर कोई सिर्फ 3 कंपनी में डाल के छोड़ देता, एंजल इन्वेस्टमेंट अगर 3 कंपनी में डाल के छोड़ देता, इट इज हाईली लाइकली कि वो 3 कंपनियां भी शायद ना चले और उसे लगे कि एंजल इन्वेस्टिंग ही बेकार है। सो लॉट ऑफ दैट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल डाइवर्सिफाइड। मैं ऐसे, मेरा एक दोस्त है अच्छा, उसने कुछ मतलब, और बात होती रहती है ना इस चक्कर के अंदर, अच्छा कि सो सपोज इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन समथिंग और ही इज इन्वेस्टिंग इन समथिंग एंड ही विल सजेस्ट टू मी, उसने अब गिव अप मार दिया है इसको लेके कि इस थ्योरी वाज कि अच्छा चल 1 में नहीं चलता है, 2 में नहीं चलता है, 3 में नहीं चलता है। कुछ 15-16 कंपनीज में उसने इन्वेस्ट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 7-8 इयर्स, एक भी नहीं चली है बेचारे की। तो ऐसा नहीं है कि 3 के अंदर नहीं चले, 15-16 के अंदर उसने। तो मतलब हम लोग की तो बात होती है ना, तो अब तो वही होता है कि अच्छा, तो जैसे मेरी भी जो 1-2 कंपनी थी जिसमें पैसा मेरा डूबा, उसके अंदर उसने भी डाला था, बिकॉज वी हैड टॉक्ड अबाउट इट कि अच्छा हाँ तू डाल रहा है, तो हम तो उसको अब बोल दिया हूँ कि बेटा तुम कहीं भी हाथ लगाएगा ना मेरे को मत बताना, हमको नहीं डालना है तेरे साथ में, जहां डालता है पैसा डूब जाता है। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो पीपल जिसने लाइफ में एक कंपनी के अंदर पैसा डाला और वही भाई साहब चल गई और वारे न्यारे हो गए। सो बोथ सॉर्ट ऑफ पीपल एग्जिस्ट। आई डोंट रियली थिंक कि ये जो 10 में से 2 चलेगी, 10 में से 3 चलेगी इज अ वेरी वैलिड एग्जांपल फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ये स्टॉक मार्केट के उससे आता है कि अरे यार 10 बड़ी बड़ी कंपनी के आप ले लोगे तो उनमें से 2 तो तुमको बढ़िया रिटर्न दे ही देगी। दैट्स वेरी वैलिड बिकॉज देयर द 10 नेम्स आर फेयरली एस्टैब्लिश्ड। यहां पे मेरे को नहीं लगता दैट द नंबर इज गोइंग टू बी 2 out of 10. The number should probably be 20 out of 100. I believe that is possible. कि अगर तुम 100 कंपनी में लगा रहे हो, उनमें से 20 जो हैं वो चल जाएंगी, there is a reasonable probability to that. But 2 out of 10 sounds difficult to me, to be really honest. I mean, it also I think depends on the kind of expertise, or you would say the kind of time you have to do the due diligence on a particular company. Generally angel investors आप देखेंगे जिन्होंने अभी शुरू किया है, वो शायद इतना डीप डाइव नहीं कर पाते जितना of course as you said the fund managers do. They go very deep into the due diligence part. They have to. काम है उनका, पैसा लेते हैं भाई 2+20 इतना ज्यादा फीस है ना ये वीसी फंड्स वगैरह का कि योर माइंड विल बॉगल। मतलब 2% 3% तो इन लोगों का पहले डे पे ये लोग ले लेते हैं, फिर उसके बाद में अगर कोई कंपनी चली, ऐसा नहीं है कि पूरे फंड के ऊपर फिर इनका कैरी रहेगा। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि खाली जो जो कंपनी चलती है उसी के अंदर हम लोग कैरी लेंगे। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर वो फंड के अंदर कैरी अपना देखते हैं वर्सेस इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरीज के अंदर कैरी देखते हैं, तो इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरीज के अंदर उन लोग को बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है। तो इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना फीस ले रहे हैं, तो काय के लिए ले रहे हैं? मेहनत करने के लिए तो ले रहे हैं। और मेहनत करोगे, आप ड्यू डिलिजेंस करोगे, सारा चीजें पता करोगे, इंडस्ट्री के बारे में समझोगे, तो रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। मैं और तुम, या आई डोंट नो इफ यू डू इट, बट मुझ जैसे लोग जो हैं जो कि एंजल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो तो राम भरोसे कर रहे हैं कि अच्छा हाँ यार ये लड़का बढ़िया है। मतलब मैं तो इसीलिए करता हूँ यार, ये आदमी है, ये आदमी बेईमानी तो नहीं करेगा। अब कोई 35 साल का आदमी है, उसमें से उसने 6 साल से वो गूगल में काम कर रहा है, आईआईटी खड़गपुर से वो पास आउट किया हुआ है, और वो आके बोलता है कि हांडा नई कंपनी चालू कर रहा हूँ, तो पागल थोड़ी है यार, वो सब कुछ अपना सेट लाइफ छोड़ के नई कंपनी चालू करेगा। So there is some reason that he is doing that, and backing him is never a problem, and I have done that. I'll continue to do that as long as it makes sense for me financially. कि ऐसा नहीं हो ये सब कर करके भैया मेरा इन्वेस्टमेंट ही इतने ज्यादा हेवायर हो जाएं कि भैया मेरे को अपना
घर चलाने में दिक्कत आ जाए या मेरे को अपना 5 स्टार में रहने में दिक्कत आ जाए, जो भी मैं करना चाहता हूँ उसमें दिक्कत आ जाए. दिस इज कमिंग इन फ्रॉम अ Hmm. सरप्लस pool of money that I have. Hmm. So Right. that risk needs to be And what acknowledged. was absolutely risky asset class to hai, you need to do that kind of a calculation before getting into this asset class. I wanted to I was just asking whether आपने बोल तो दिया कि आपने एंजल इन्वेस्टमेंट जब किए तो you got to know from people कि ये कंपनी शुरू कर रहा है, कंपनी शुरू कर रहा है, but still let's say at the very recent investment that you have done, आपने जो बताया कि अभी एंजल फंड जो 25 lakhs, what would you say would be was the actual reason to invest in an angel fund? Was this just pure returns kind of perspective के returns ठीक ठाक दे देंगे ये लोग, या कुछ और भी है mindset in this asset class, angel investment? Like asset class की बात नहीं थी, ये बात आदमी की थी. So the fund that I have invested in, it's called Longview Ventures, which is being run by Right. Akshat. Akshat is the same guy जो कि 8 साल पहले मुझसे पैसा लेके ऑपरेटर वीसी का फंड उसने रन किया था. So बिल्कुल. I know the guy, मेरे को उसके ऊपर भरोसा है कि हाँ यार, इस आदमी ने पिछली बार कमा के दिया है जब कम पैसे थे, इसमें भी कमा. भाई 8 साल का एक्सपीरियंस तो उसको मेरे देखते देखते हो गया है. He has definitely learned and matured and he has built contacts and he has done a lot of things. So backing him कि यार ये पैसा मेरा डुबोएगा नहीं, made it a very easy choice for me to make. अगर मान लो मैं रैंडमली मार्केट में जाता कि नहीं मेरे को वीसी एसेट क्लास के अंदर पैसा लगाना है, मेरे को स्टार्टअप एज एन एसेट क्लास में पैसा लगाना है, तो शायद मैं नहीं करता. बट मेरे को यहाँ वो इंसान के ऊपर भरोसा है. एंड देन यस, द अदर इज द ग्रीड कैटेगरी कि अगर मेरे जो एसेट्स हैं उनको मैं डाइवर्सिफाई करके रखूंगा, उनको मैं अलग अलग चीजों में डाल के रखूंगा, तो मेरे को उन सब चीजों का जो एवरेज आएगा मेरे को एक मॉडरेट रिटर्न्स मिलेंगे. हाउ कैन आई टेक सम बेट्स कि जहां पे मेरे को ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं? अब मैं अपना जो बल्क ऑफ द पोर्टफोलियो है, मैं बल्क ऑफ द पोर्टफोलियो को ऐसे चला के रखता हूं कि हाँ भैया इक्विटी के अंदर रहे, डेट के अंदर रहे, विच विल गिव मी सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स. फॉर दिस एक्स्ट्रा बिट की अल्फा अपने पोर्टफोलियो में अगर मेरे को जनरेट करना है, तो वो मैं कहां से कर सकता हूं? वो उसके लिए आप क्रिप्टो एसेट्स की तरफ जा सकते हो. दैट इज एन आइडिया दैट यू कैन यूज. आप डायरेक्ट स्टार्टअप्स की तरफ जा सकते हो, एंजल इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हो, आप ये वीसी फंड्स का रूट ले सकते हो. सो दिस इज द रूट दैट आई हैव टेकन बिकॉज आई डू हैव होप कि ये मेरे को एक अच्छा अल्फा जनरेट करके देगा. और अगर नहीं भी देगा तो भी पैसा तो डुबोएगा तो है नहीं. तो ठीक है. That's the key reasoning. That's great. That's great. And just quickly talking about one of the recent posts that you posted on LinkedIn about the VCs कि यार ये लोग काम तो बढ़िया कर रहे हैं, जरूरत है इनकी. ठीक है, उसके पीछे क्या थॉट था? अचानक से सर क्या हो गया? अरे यार, मतलब मैं सोशल मीडिया के ऊपर वीसी लोग को जो है कई बार बहुत क्रिटिसाइज करता रहता हूँ. एंड बट ऐसा नहीं है खाली क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज करता हूँ, बिकॉज आई डू बिलीव दैट दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर डेट्रीमेंटल. फॉर एग्जाम्पल, जो कैश फ्लो उन्होंने मार्केट के अंदर इंक्रीज किया है, द सॉर्ट ऑफ पीपल दैट दे हैव बैक्ड इन द पास्ट, जिस टाइप के कुछ कुछ गलत लोगों को उन्होंने बैक किया है मेरे ओपिनियन में, और वो रिजल्ट्स में भी नजर आता है. देयर आर इवन एक्चुअल फ्रॉड्स व्हिच आर देयर, नॉट जस्ट बैड डिसीजन मेकिंग. और उस वजह से काफी सारे मेरे जान पहचान वाले लोगों का भी पर्सनली मुझे लगता है कि नुकसान हुआ है. तो वो दुख होता है कि यार यह आदमी था, इसने 2022 के अंदर अपना अच्छा खासा बैंक के अंदर काम कर रहा था, बैंक से उसको एक स्टार्टअप का ऑफर आया, बैंक में 100 रुपए मिल रहे थे, स्टार्टअप ने बोला मैं 250 दूंगा, भाई साहब छोड़ के आ गए, 6 महीने में वो स्टार्टअप ने निकाल दिया. अब व्हाई डिड दैट हैपन? अ लॉट ऑफ द रीजन दैट हैपेंड वाज बिकॉज वो स्टार्टअप ने पैसा उठाया था. स्टार्टअप के पास पैसा कहां से आया? किसी वीसी ने दिया था. तो मेरे मन में, मेरे दिल में वो सारा का सारा जो ब्लेम है
वो मैं वीसी के ऊपर ट्रांसफर कर देता हूँ, एंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मैं फाउंडर के ऊपर ट्रांसफर करता हूँ, मेनली फाउंडर के ऊपर करता हूँ, बट फाउंडर को एनेबल करने वाला, मतलब फाउंडर वो है जो चाबुक मार रहा है, बट उसके हाथ में चाबुक पकड़ाया किसने? वो चाबुक उसने वीसी ने पकड़ाया है। तो इसलिए मैं उनके खिलाफ काफी बोलता रहता हूँ सोशल मीडिया पे। हैविंग सेड दैट, कभी कभी मेरे को ये भी लगता है कि यार बट ये वीसी लोग काम तो बढ़िया कर रहे हैं ना, कि यही लोग हैं, इन्हीं की वजह से स्टार्टअप्स, अगर ये लोग नहीं होते तो ये जो बुरे केसेस हैं ये नहीं होते, बट वो बुरे केसेस कितने हैं? 5% हैं, 10% है। अब मेरे साथ बुरा हो रहा है या तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है या मेरे किसी दोस्त के साथ बुरा हो रहा है, तो हम 3 लोगों के साथ में बुरा हो रहा है, बट 100 लोगों का फायदा भी तो हो रहा है। तो कई बार मेरे को लगता है यार मेरे को अपना और अपने दोस्तों का देखना चाहिए जिनका बुरा हो रहा है, कई बार मेरे को लगता है नहीं यार पूरा 100 लोगों का देखना चाहिए जिनका की फायदा हो रहा है। और मेरे बहुत सारे दोस्तों का फायदा भी इससे बहुत हुआ है। A lot of people that I know have made a lot of money thanks to VCs. They are able to get high salaries because they work in VC funded companies. तो मेरे को लगा कि ये उस दिन मैंने एक एंटलर के वीसी का पोस्ट देखा कि वो लोग जो है $10 मिलियन, जो कि 80 करोड़ रुपया होता है, मतलब कम अमाउंट नहीं है, 20 लोगों को देंगे, 20 लोगों को, यानी कि 20 लोगों को वो लोग 4-4 करोड़ रुपया देंगे। किस पे? आइडिया पे। अब तुम सोच रहे हो कि अगर जेन्युइनली, अब आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी और हाउ यूजलेस दिस प्रोग्राम इज गोइंग आउट टू बी, कि तुमने खाली आइडिया के बेसिस पे 4 करोड़ दे दिया और फिर वो 20 के 20 लोग गधे निकल गए, तो कुछ भी हो सकता है यार। बट इट कुड वेरी वेल बी कि बहुत सारे लोग जो है वो सोच ही नहीं पाते कुछ करने का या करने का, बट अब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। 20 लोग को देंगे तो कम से कम वो 200 लोग में वो आग तो पैदा करेंगे कि हाँ यार कुछ कर सकते हो। एंड दिस इज सम, नाउ इट साउंड्स लाइक बुलशिट कि तुम रैंडम 20 लोगों को उठा के खाली आइडिया के बेसिस पे 4-4 करोड़ रुपया इंडिया में दे दो, मजाक नहीं है। बट because VCs are taking these sort of decisions, which can look stupid at point of time, which can look great at a point of time, so they need to be appreciated because वही लोग हैं जो जैसे कहते हैं ना कि ये गेम खेल रहे हैं भाई। हम बैठ के बोल सकता हूं ना कि वो हार्दिक पांड्या को वो शॉट नहीं मारना चाहिए था, बट वही है ना जो मार रहा है, तो वो खेल रहा है, तो उसको हम तो गाली तो दूंगा, वो 50 बार गाली दूंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे वो अगर खेल ही नहीं रहा होता तो गेम ही नहीं होता ना यार। सो यू नीड टू अप्रिशिएट देम एट some point of time as well. So that was the reason behind the Antler post. Yeah, amazing, sir. Very well said. Really, very wisely presented two sides of the same coin. अच्छा लगा सुन के सर। I think with that, we have come to an end of this podcast, and I would like to have some closing remarks on from you. Maybe some advice on to people who are maybe in their 30s, early 30s, right, and thinking of this FIRE thing, the financial independence and retire early thing. What would your be advice to them? देश छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम इंडिया के अंदर रहोगे ना तब तक तुम उतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे जितना शायद तुम डिजर्व करते हो। और अगर 30 की उम्र में तुम फायर का सोच रहे हो, तुम ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन पे हो, because you are making that amount of money, you can even think about it. Most people at 30 are not even able to think about fire. You are able to think about it, that means you are at a certain level financially, and that means there is a high probability that you will be capable of leaving the country. Leave the country, go outside, work for 10 years, your life will be in a much better position financially if you ever decide to come back. So that's what I would suggest. That's the best possible route to achieve fire is go abroad. Okay. That's very short and simple. That's great, but lovely, sir. It was a lovely conversation, and I think I had a lot of fun actually. है ना आपसे बात करके। थोड़ा सा कहीं ना कहीं हार्ट बीट भी तेज हो रही थी मेरी बीच में। But again, amazing. Thank you for doing this. Thank you very much. Thanks for inviting. Thank you. Bye bye.